Welcome back, everyone. Once again, I am here with you some more topics of matter in our surroundings. As you all know that in the previous class we had discussed a lot of things related to matter and the particles of matter. Also, we had discussed a lot of things related to particles of matter like their characteristics and also about some evidences. But now in this class we all have to read something more related to matters. So first of all, before starting the topic that how the matters are being classified, basically we have to discuss about the classification of matter. But before starting this topic, we need to know about some terms. Let us know about the terms. The first one is rigid and another one is fluid. रिजिड और फ्लूइड के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है. लेट्स सी अबाउट द रिजिड. Rigid means unbending or inflexible. Unbending or inflexible means that can't be bent. Like for example, this pen I have. It can't be bent. इसे हम bend नहीं कर सकते. And the solid is a rigid form of matter. Solid जो होता है ना, ये क्या है? Rigid form. Matter का ही rigid form है. It maintains its shape when subjected to external force. For example, this pen is with us. If I am going to apply some force on it, over it, हम इसके ऊपर कुछ force अगर apply भी कर देते हैं, then it can't be bent. Understand? Means जो solids होते हैं वो अपना shape maintain करके रखते हैं, even कोई external force इन पे apply कर दिया जाए तो भी. Got it? That's why rigidity is the main identifying characteristic of solids. Solids जो होते हैं उनका जो main identifying characteristic हो जाता है भी, वो क्या हो जाता है? That is rigidity. Understand? The next one is about fluid. Fluid means a material that can flow easily. ऐसा मटेरियल जो क्या करे, वो फ्लो हो सके, आसानी से फ्लो होता रहे. So another thing is with us. If anything is flowing, then we requires any container to keep it. अगर कोई भी चीज़ फ्लो कर रही होगी भाई, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई एक कंटेनर चाहिए जिसमें कि हम उसे रख सकें. So basically liquids and gases, these are termed as fluids. इसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स में टर्म करते हैं. अंडरस्टैंड? लिक्विड देख लीजिए. A fluid that occupies the lower part of the container. लिक्विड जो होता है ना, ये क्या करता है? It always occupies the lower part. मीन्स किसी भी कंटेनर में अगर आप लिक्विड पोर करते हैं तो वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल it occupies the lower part and then it moves on. Understand? And one more thing is with the liquid, that it doesn't fill the whole container. ये कंटेनर को completely fill नहीं करता है. Understand? And the reason behind that is the particles of liquids are packed. ये क्या होते हैं? लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे हैविंग सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स इट विल बी लेसर, but still they having some force of attraction. That's why the liquids cannot fill the complete container, whereas gases is a type of fluid that fills the whole container in which it is kept. जबकि gases क्या करते हैं? ये पूरी तरह से कंटेनर को फिल कर देते हैं जिस भी कंटेनर में इनको हम रखते हैं. Got it? और ऐसा इसलिए होता है कि इनका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, the arrangement of the particles, or we can say that the force of attraction between the particles is negligible. Understand? In the description I had
शेयर्ड अ लिंक, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको कंपैरिजन अमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस देखने को मिल जाएगा। गॉट इट? एंड ऑल्सो बिफोर explaining about the classification of matter or different types of matter on the basis of their physical states, first of all it will be necessary for us to know about the arrangement of particles. Understand? So first of all, let's have a look over it. In front of you I'm going to represent the particular arrangement, or we can say that the arrangement of particles in solids. आप देख सकते हैं जो गिवन डायग्राम है उसमें आपको दिख रहा होगा कि सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो कैसा होता है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स में अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, दैट इज क्लोजली पैक्ड। अंडरस्टैंड? एंड द सेकेंड थिंग दैट इज अबाउट लिक्विड्स। लिक्विड्स में अब देख लीजिए आप अरेंजमेंट कैसा है ना। लिक्विड्स का अरेंजमेंट जब आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं, जो पार्टिकल्स हैं दैट आर लिटिल बिट फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपैरिजन में क्या है, वो कुछ दूरी पे है, सो कुछ डिस्टेंस पे है। इट मीन्स दे हैव सम force of attraction between them. Means particles of liquid have some force of attraction between them, but in comparison to solid it will be lesser. Understand? लिक्विड्स में क्या होता है कि जो ये अरेंजमेंट होता है, फर्दर हम प्रॉपर्टीज़ के साथ पढ़ेंगे, बट यहाँ भी जान लीजिए कि जो ये अरेंजमेंट होती है, बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट द पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो स्लाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाते हैं। दैट्स वाई दिस मेक्स अस द लिक्विड्स टू फ्लो ईजिली। अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट गैसेस। गैसेस देख लीजिए, गैसेस में क्या आपको दिख रहा है अभी? गैसेस में ये दिख रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं they don't have any kind of force of attraction between them. Means basically हम ये कह सकते हैं कि they are free to move anywhere, वो freely move कर सकते हैं। That's why यहाँ पे ये मैंने बोला कि नहीं, जो गैस होते हैं ये भी क्या है, a type of fluid है, a form of fluid, but यहाँ पे क्या है कि ये free to move है। That's why they can fill the whole container. ये क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कंटेनर फिल कर देंगे। गॉट इट? नाउ कम बैक टू द पॉइंट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, एंड द फर्स्ट वन इज सॉलिड्स। एज आई हैड टोल्ड यू, इट इज रिजिड, एंड अनदर वन इज लिक्विड्स, देन द थर्ड वन इज गैसेस। सो यहाँ से हमको ये सीखने को मिल गया कि भाई सॉलिड्स जो होते हैं दे आर रिजिड, वेयर एज लिक्विड्स एंड गैसेस आर द फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में देख लीजिए। बट वन थिंग आई थिंक वी ऑल नीड्स टू नो वन मोर थिंग, that is how these solids, liquids and gases having different properties. So as you had already seen about the arrangement of particles, understand? And once again just take the look in the given diagram. Whatever the given diagram is saying, it depicts the force of attraction among the particles. Particles के बीच में जो force of attraction है ये बताता है। Second thing, it tells us about the space
बिटवीन द टू पार्टिकल्स, जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के स्पेसेस को भी बताता है. एंड ऑल्सो द थर्ड थिंग इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. So these are the three basic things, basic properties we can say, that basic things we can say, that determines whether the given substance is solid, liquid or gas. And a theory works here also, and that theory is termed as kinetic theory of matter. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग क्या कहा गया भाई, एक चीज़ पहले आप लोग जान लीजिए कि हम लोगों ने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ी थी तो उसमें ये पढ़ा था हमने कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. एंड दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट इफ़ द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, जब पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में हैं, देन they also possess some energy. And one thing, just mention it, that whenever any object or any substance is in motion, कोई object motion में है and it starts to possess energy, it starts to acquire energy, then that kind of energy is termed as kinetic energy. Understand? So these things determines about the substance, that it is going to be a solid, liquid or gas. Got it? Now we come again towards the topic, that is properties of solids. First one is a solid has fixed shape. Solid का जो shape होता है that is fixed. क्यों होता है भी? बिकॉज जो हमने पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखा, वॉट एवर वी हैड सीन, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. पार्टिकल्स क्या है? क्लोजली पैक्ड. क्लोजली पैक्ड क्यों है भाई? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मीन्स जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी मच स्ट्रॉन्गर. वेयर एज द सेकेंड प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट अ सॉलिड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम. सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है. फिक्स क्यों वॉल्यूम होगा? क्योंकि जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का वो भी क्या है? फिक्स होता है. अंडरस्टैंड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स हो जाता है वो भी क्या होता है? फिक्स हो जाता है. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सभी पार्टिकल्स की पोजीशन जो है सॉलिड्स में वो फिक्स हो जाती है. गॉट इट? अनदर थिंग, अ सॉलिड कांट बी कंप्रेस्ड. सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं? स्पेसेस कम होते हैं. अ सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी. हाई डेंसिटी क्यों होती है सॉलिड्स की? क्योंकि भाई ये जो क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, बिकॉज ऑफ दैट ये काफ़ी डेंस होते हैं. एंड अनदर थिंग, अ सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली. सॉलिड्स जो हैं वो किसी भी कंटेनर को फिल नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज जस्ट दिस पेन, इफ़ यू आर गोइंग टू कीप इट इन अ बकेट, हम इसको क्या बकेट में रख देंगे तो बकेट क्या फुल्ली फिल्ड हो जाएगी? नेवर. अंडरस्टैंड? And the last one is a solid doesn't flow. Solid flow नहीं करेगा. Got it? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है. They can't slide. Understand? Under some external influence, कुछ external influences के कारण ये क्या करेंगे? ये काइनेटिक एनर्जी इनमें प्रोड्यूस होती है, बट इट विल बी मिनिमम. गॉट इट? वो मिनिमम होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, one more thing I want to tell you about solids, that there are some solids also. There are
some solids also, for example like rubber band. Even rubber band can be stretched. rubber band जो होता है हम उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, बट फिर भी क्या होता है, ये सॉलिड्स में ही काउंट होता है. और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न ये होता है बिकॉज अंडर सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मीन्स जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मीन्स रबर बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे, तब वो क्या करेगा, अपनी शेप चेंज कर देगा, अपना शेप जो है वो चेंज कर देता है. बट जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स उस पर जो लगाया गया है वो हम रिड्यूस कर देते हैं, मीन्स अगर छोड़ देते हैं उसे फ्री, देन क्या होगा कि रबर बैंड जो है इट एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल शेप, अपने ओरिजिनल शेप में वो आ जाना है उसे. गॉट इट. एंड ऑल्सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर दैट इज crystals of sugar and salt. I don't think that they are of same shape or size. But here we have to consider, because if we go through an individual, each and every individual crystal of sugar particle, sugar के क्रिस्टल की बात अगर हम करें तो एक एक इंडिविजुअल शुगर क्रिस्टल को अगर हम जब देखने जाएंगे तो हमें यही फील होगा कि नहीं ये क्या है, दीज आर ऑफ सेम शेप, सभी सेम शेप के हैं. सो हियर ऑल्सो वी कैन कंसिडर देम एज सॉलिड्स. एंड ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल इज स्पंज. स्पंज इट कैन बी स्क्विज्ड. इसको हम क्या कर सकते हैं, स्पंज को स्क्विज कर सकते हैं, लेकिन स्क्विज करने के बाद जब हम क्या करेंगे, उसे लीव करेंगे, देन इट एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. दैट्स वाई इट ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ सॉलिड. आई होप इट विल बी क्लियर टू यू. देन कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज की बात कर ले. अ लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप. लिक्विड्स का क्या होता है भाई, इनका फिक्स शेप नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, बिकॉज जो इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है उसकी वजह से, मीन्स दे हैविंग लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स. अंडरस्टैंड. जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, एंड जब स्लाइड करते हैं देन दे अक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर. जो भी कंटेनर इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिस कंटेनर में इनको रखा जाएगा, ये उसी कंटेनर का शेप अक्वायर कर लेंगे. अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट थिंग इज अ लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है ये फिक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई हैड गिवन यू 1 liter of water and 3 different vessels. 3 different vessels आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं and 1 liter of water. Then one by one, if I allow you to pour into the different containers, pour the given water in different containers, then what will you observe? भाई 1 liter water तो 1 liter ही रह जाएगा ना. बट यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है कि वो क्या करेगा, डिफरेंट कंटेनर्स के शेप अक्वायर कर लेगा, लेकिन 1 लीटर वाटर है तो वो 1 लीटर ही रह जाएगा. अंडरस्टैंड. और इसका वॉल्यूम फिक्स इसलिए भी होता है बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स होता है इन लिक्विड्स, इट रिमेन्स द सेम, और वी कैन से दैट इट विल बी फिक्स्ड. वो फिक्स्ड होता है. अनदर थिंग इज a liquid cannot be compressed so much. मीन्स लिक्विड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता. इट कान बी कंप्रेस्ड सो मच बिकॉज ऑफ दीज हैविंग स्मॉल स्पेसेस बिटवीन दैम. मीन्स इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच जो होते हैं स्पेसेस जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं. अंडरस्टैंड. Now come to the next point, that is a liquid has comparatively high density. लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है comparatively high होती है. comparatively high means
if we go through the comparison of solid, liquid and gas, we will found that solids having much more density in comparison to liquids, and liquids having much more density in comparison to gases. Understand? Another thing, a liquid does not fill its container completely. Liquid जो होता है ये अपने containers को completely fill नहीं करता है. Already I had told you about the reason कि भाई जो particles होते हैं they having some force of attraction between them. Understand? And it can flow easily. A liquid can flow easily. इसका भी concept आपको reason बता दिया गया है कि क्यों liquids जो होते हैं वो easily flow करते हैं. Got it? So once again I am going to repeat that कि liquids जो हैं वो easily flow इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके जो particles हैं इनके बीच जो force of attraction होता है that is not much stronger as in solids. Solids की तरह बहुत ज़्यादा strong नहीं होता है. इनकी particles के बीच में spaces होते हैं जो कि इनको allow करते हैं कि ये particles जो है they can slide over each other. Because of that the liquids can flow easily. Understand? Now come to the properties of gases. Properties of gases की भी बात कर लेते हैं आज. A gas does not have fixed shape. Gas का जो shape होता है वो fix नहीं होता है and it does not have fixed volume. इसका volume भी fix नहीं होता है. Understand? Reasons की बात अभी करते हैं. First of all, let's have a look over all the properties of gases. A gas can be compressed easily. Gas को हम easily compress कर सकते हैं. A gas has very low density. Density low होती है gases की. And it can fill the container completely. Containers को ये अपने completely जिस भी container में इसे रखा जाएगा उस container को ये fully fill कर देगी. Understand? And it flows easily. ये easily flow करती है. So all these properties relates to the same thing, that is the arrangement of particles. भाई fixed shape और volume क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो position of the particles होती है इनकी वो fix नहीं होती है because of negligible force of attraction between the particles. Particles के बीच जो force of attraction होता है वो negligible होता है और negligible force of attraction होने की वजह से ही क्या होता है, स्पेसेस जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं. हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि जो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैं दे आर फ्री टू मूव anywhere they can go. Understand? Then a gas can be compressed easily. इसे compress easily इसलिए किया जा सकता है क्योंकि स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं पार्टिकल्स के बीच में. Particles are far apart from each other. Understand? That's why they having large space between them. Understand? And that arrangement of particles says that gases having very low density. And also about this one that a gas fills its container completely. Gas क्यों container को completely fill करेगी? Because first of all we had studied about the particles of gases that they are free to move. Free to move means they don't have any foundation like liquids that you have to fill the lower part of the container first. Means they are free to move. They can move anywhere. Understand? That's why they used to fill the container completely. Understand? And if the particles are free to move, then we can easily say that the particles they are free to move. They don't have any kind of force of attraction between them. That's why it can flow easily also. Got it? So dear students, this is all about this class and we will meet again with some new topics related to matter. Understand? अभी और भी कुछ topics बचे हुए हैं matter in our surroundings से related. So one by one we will discuss about all these things related to matter in our surroundings. So thank you and have a nice time to you all.